بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب کریم کی حمد و ثنا کرتے ہیں ہم سب مل کر، جس کے فضل سے ہم قرآن کو سمجھنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں علم کی روشنی دے کر ہماری زندگیوں کو بہتر بنا رہا ہے۔ بے شک ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا قرآن سے روح کو روشن کرنے کے لیے اور ہدایت کی اس مجلس میں بیٹھنے کی، تبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، ہدایت ملی، زندگی کا اصل مقصد ملا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی مطالعہ قرآن کلاس میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کی ریگولر اٹینڈنس، توجہ اور جذبہ ہی ہماری کلاس کی خوبصورتی ہے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس کا، سبھی طلبات کا بہت شکریہ کہ آپ لگاتار نوٹس بنا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآنی سوچ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ یہی اصلی کامیابی ہے آپ کی۔ ہماری کلاس کی خاص بات یہی ہے کہ ہم صرف یہاں تلاوت نہیں کرتے بلکہ آیت کا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں، اس کا حکم اور اس کا فائدہ سمجھتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے، سوچنے اور زندگی بنانے کا سفر۔ معزز سامعین، ہمارا چل رہا ہے سبق نمبر 13، جس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے آیت نمبر 23 سے 25 کا ڈیٹیلی مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور کل ہمارا کنکلوژن سٹارٹ ہو گیا تھا، جس میں اللہ نے والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے بارے میں جو حقوق بتائے ہیں کہ ان سے کیسے پیش آنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 سے 28 کا کمپلیٹ کنکلوژن کریں گے۔ یعنی ان آیتوں کا السلام علیکم، ایک بار ان کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پالنہار ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ ناطے داروں کو اس کا حق دو اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی ضرورت مند ناطے دار، محتاجوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس وجہ سے کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ آیت نمبر 28 تک ہمارا انشاءاللہ آج کنکلوژن رہے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی آیتوں کا کنکلوژن ہو چکا ہے، اور ہم یہاں جو کل ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے جو بات کی ہے وہ ناطے داروں کو اس کا حق دو، یہاں تک الحمدللہ ہماری بات
मुकम्मल हो चुकी थी कि नातेदारों को उसका हक दो, जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे करावतदार होते हैं, उनकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है और हमें बाहर देखने से पहले अपने घर के में देखना चाहिए जो हमारे करीबी हैं, उनसे हमें हुकूक उनके जितने हैं वो हमें अदा करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी और बताई मोहताज की। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सूरह बनी इसराइल में जो बताई जा रही हैं, ये एक मैनिफेस्टो के तौर पर बताई जा रही हैं, यानी हुकूमती लेवल पे हुकूमत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो कि इनके राइट को प्रिजर्व किया जाए, यानी रिश्तेदारों के राइट को जो मुसाफिर हैं उसके जो राइट्स हों वो प्रिजर्व हों उस हुकूमत में। जो मोहताज हो यानी मिस्कीन हो उनके राइट भी हुकूमत में कि महफूज हों, यानी उनका ख्याल हुकूमत रखे। तो ये काम हुकूमती लेवल पर होने चाहिए, ये अल्लाह ताला यहाँ पर हिदायत करते हैं। तो यहाँ पर जो नातेदार के बाद यानी जो कराबतदार हैं, उनके बाद जो ज़िक्र है वो मिस्कीनों का है, यानी जो मोहताज हैं, जो मिस्कीन हैं, उनका ज़िक्र है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिस्कीन असल में होता कौन है? क्योंकि हम मिस्कीन उसको समझते हैं कि जो हमारे सामने भीख लेने के लिए आता है, ये बड़ा मिस्कीन है, ये बड़ा मोहताज है। ऐसे मोहताज को देना सवाब का काम है। वो लाउड स्पीकर में जो लगा रहता है, उसके पैर वगैरह वो कुछ थोड़े बहुत वो डैमेज होते हैं, हार्ट डैमेज होते हैं, तो अ, एक स्पीकर में वो आवाज़ आती है, ऐसे मोहताज को देना सवाब का काम है। बिल्कुल वो मोहताज है, क्योंकि वो खुद करके नहीं खा सकता, तो मोहताज तो है। लेकिन यहाँ जो वर्ड आया है यानी मिस्कीन, एक मिस्कीन एक अलग चीज़ है और गरीब एक अलग चीज़ है। एक इंसान होता है जो भिखारी होता है, वो हाथ बढ़ाकर माँग लेता है, लेकिन मिस्कीन नहीं माँगता कभी। वो ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाता। उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके पास खाने को भी नहीं होता, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो मिस्कीन को हम समझते हैं कि मिस्कीन होता कौन है? तो गरीब और मिस्कीन में बेसिक जो फ़र्क है वो यही है कि गरीब जब उसको ज़रूरत होती है, उसके पास खाने को नहीं होता है, तो वो किसी के भी आगे हाथ फैला लेता है और अपनी हाजत पूरी कर लेता है, यानी वो माँग लेता है। लेकिन मिस्कीन इससे अलग है। मिस्कीन वो लोग हैं जिनके पास भले ही खाने को भी ना हो, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और हो सकता है कि समाज में उनकी इज़्ज़त भी हो। उनको लोग बड़ा खाते-पीते घर का समझते हों, वो व्हाइट कॉलर लोग हों, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि उनके पास जो बेसिक नीड है उसकी भी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं हो, तो ऐसे लोग मिस्कीन कहलाते हैं। इनका हक अदा करना है। ऐसे लोग मिस्कीन कहलाते हैं, यानी जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जो किसी के आगे माँगते नहीं हैं, इसी मुआशरे का पार्ट रहते हैं और हमारे इर्द-गिर्द ही रहते हैं और हमें वो नज़र नहीं आते। हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, इनकी लाइफ़ ओके चल रही है, लेकिन जब कोई उनके अंदरूनी हालत उनको पहचानता है, देखता है, तो वो उनको पता लग जाता है। कुरान में भी कहा है कि ज तुम जब उनको देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तुम उनको चेहरे को थोड़ा डीप स्टडी करोगे उन पे, तो आपको पता लगेगा कि यही असल मदद के हकदार हैं। तो ये मिस्कीन होते हैं, यानी इनको व्हाइट कॉलर लोग हम वो कह सकते हैं कि जो हमारे मुआशरे में ही रहते हैं। ये जो मैंने बात कही है कि गरीब अपनी हाजत माँग लेता है, हाथ आगे करके वो दूसरों से माँग लेता है, लेकिन मिस्कीन कभी माँगता नहीं है। ये बात भी सुनन नसाई में एक हदीस हमें मिलती है 2572 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है कि जिसको खजूर का 1 लुक़मा, 1 खजूर या 2 खजूर या 1 लुक़मा या 2 लक़मा वो लुक़मा दो और वो उसको एक्सेप्ट कर ले। बल्कि मिस्कीन वो है जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद माँगने से परहेज़ करे। वो है मिस्कीन। तो पूरी मिस्कीन की जो डेफ़िनेशन है, वो हमें अहादीस के ज़रिए हमें मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिस्कीन की डेफ़िनेशन बताई है कि वो ज़रूरतमंद होने के बावजूद वो माँगने से परहेज़ करता है, वो माँगता नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक आयत पढ़कर लोगों को बताया कि तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। उसमें ये है कि सदक़े के मुस्तहिक, यानी जो सदक़े हैं आपके, जो खैरात हैं, उसके जो मुस्तहिक हैं, असल कौन है? असल वो लोग हैं जो माँगते वक़्त लोगों के गले नहीं पड़ते। एक तो ये कहा है कि जो माँगते वक़्त लोगों के गले नहीं पड़ते, जैसे कि गरीब आ जाते हैं। मिस्कीन हाँ, हो सकता है कि वो किसी से कह दे, अपने फ्रेंड सर्कल में कह दे, अपने जानने वालों से कह दे कि भाई मुझे पैसों की नीड है। लेकिन वो अपनी नीड को ऐसे शो नहीं करेगा कि मेरा ये नहीं हो रहा, घर में खाने को नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वो कोई दूसरी ज़रूरत बता सकता है अपनी कि मेरी ये हाजत है। आपको लगेगा वो पैसा आपसे उधार माँग रहा है।
लेकिन उसको ज़रूरत होती है। लेकिन वो उधार अगर किसी से माँग रहा है, कोई हमारा फ्रेंड हमसे उधार माँग रहा है, तो हमें तहकीक करनी चाहिए कि इसे उधार माँगने के पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तहकीक नहीं करते। कहीं हमारा फ्रेंड ही तो मिस्कीन नहीं है कि वो डायरेक्ट नहीं माँग सकता मदद के लिए, लेकिन वो मदद का हकदार है। उसको उधार नहीं, उसको मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो कह नहीं सकता, इसलिए वो उधार के तौर पे माँग रहा है, और हमें उसको पता है कि वो उधार अदा नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है, यानी मिस्कीन सामने से गले पड़कर नहीं माँगता, करीब वो है जो माँग लेता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ही हमें वाज़ेह हो जाती है ये आयत, ये मिस्कीन की डेफिनेशन। और सूरह बकरा आयत नंबर 273 है, जिसमें अल्लाह ताला ने मिस्कीन की तरफ इशारा करते हुए एक बात बताई है कि असल मदद के हकदार कौन हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि खास तौर पर मदद के हकदार, यानी खास तौर पर हैं वो स्पेशल, जिनकी मदद करनी चाहिए आपको, जो मिस्कीन है, जो मोहताज हैं, कि वो खास तौर पर मदद के हकदार वो तंगदस्त हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए कि अपनी निजी रोजी हासिल करने के लिए जमीन में दौड़ धूप नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। वो हैं असल मदद के हकदार। ये भी मिस्कीन हैं। कौन? जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, जो दीन के कामों में ऐसा घिर गए हैं कि वो अपने लिए, यानी अपने माश के लिए वो जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है। वो है असल में मदद के हकदार। सूरह बकरा आयत नंबर 273 में अल्लाह ताला ने वो खास तौर पर ऐसे लोगों का जिक्र किया है, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है ऐसे लोगों को, यानी जो अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए वो निकले पड़े हैं, और जो अल्लाह ताला के दीन के कामों में ऐसे गिर गए, उनके पास दीन के इतने काम हैं करने के लिए, वो खैर के इतने काम करते हैं कि वो अपने लिए जमीन में दौड़ धूप नहीं कर पाते, वो अपनी मुआश को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग हैं खास तौर पर मदद के हकदार। तो अल्लाह ताला ने यही कहा कि खास तौर पर मदद के हकदार वो तंगदस्त हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी निजी रोजी हासिल करने के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी, यानी वो ऐसे नहीं है, वो खुददार होते हैं। जब वो दीन के वो कामों में घिरे पड़े हैं तो वो लोग खुददार होते हैं। उनसे ज्यादा खुददार कोई नहीं मिलेगा आपको। उनकी खुददारी देखकर अनजान आदमी समझता है कि ये खुशहाल लोग हैं, यानी जो उनको नहीं जानता वो ये समझते हैं उनकी खुददारी देखकर, क्योंकि वो किसी से मांगते नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े खुशहाल लोग हैं, ये बड़े खाते पीते घर से हैं। इन्हें फाइनेंशियल जो मुआश की परेशानी होती है वो इनके साथ नहीं होती है। तो उनकी खुददारी मतलब कि देखकर अनजान लोग ये समझते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो। चेहरा पढ़ना आना चाहिए इंसान को। मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे, लोगों के सामने हाथ फैलाएं। वो ऐसे लोग नहीं हैं। वो खुददार लोग हैं। उनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से छिपा ना रहेगा। खास तौर पे मदद का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने ऐसे मिस्कीनों को, ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के दीन के कामों में घिर पड़े हैं। इसमें हमारे आलिम भी आते हैं, हमारे स्कॉलर्स भी आते हैं, हमारे हाफिज भी आते हैं, हमारे कारी भी आते हैं। ये सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। हम इन्हें क्या सैलरी मतलब देते हैं? क्या इतनी सैलरी में हम अपने बेटे को कहीं जॉब करा सकते हैं जितनी सैलरी हम अपने इमाम को देते हैं? हम करा सकते हैं कहीं? तभी तो जो घर का सबसे नालायक बच्चा होता है उसको मदरसे भेजा जाता है, जो इंटेलिजेंट होता है ये डॉक्टर बनेगा, इसको पायलट बनाएंगे, इसको साइंटिस्ट बनाएंगे। लेकिन जो दूसरों की घंटियां बजा बजा के भागता है, जिसने मोहल्ले में दूसरे पड़ोसियों का जीना हराम कर रखा होता है, उसको खुद से पीछा छुड़ाने के लिए घर वाले उसको मदरसे में दाखिल कर देते हैं कि कि वहीं रहेगा। अब मदरसे में जाके वो इतना तो हो जाता है कि वो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन जो आपका क्रीम जो माइंड था, जो आपका बच्चा बेहतरीन था, जो अल्लाह ताला के दीन की राह में आपको देना था, वो आपने रिजर्व कर लिया दुनिया के लिए।
اور اللہ کی راہ میں آپ مال دے رہے ہیں وہ اٹھا کے جو آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج حال ہمارے سامنے ہے. تو وہی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو مدد کے حقدار ہیں ایسے لوگ، خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں گھر پڑے ہیں. ان کو انجان لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے خوشحال ہیں، لیکن تم ان کا چہرہ پڑھ کر ان کو پہچان لو گے، ان کے اندرون کو تم پہچان لو گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان مسکینوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو ہمیں بڑی پیاری حدیث ہے، جس میں مسکینوں کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے کے برابر میں بتا دیا، اس کو عبادت کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. عبادت میں بھی سب سے بڑی عبادت کرنے والے کے لیول میں اس کو لے گئے جو صرف مسکین کی مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ آپ کو حدیث ملے گی، 6006 نمبر پہ یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یہاں پہ دو کا ذکر ہے، ایک بیواؤں کا اور ایک مسکین کا. ان کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. صرف کوشش کرنے والا. اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا فائنینشلی طور پہ، لیکن ان کے لیے کوشش تو کرے، اپنے فرینڈ سرکل میں میسج تو ڈالے، بھائی ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا ان کا منتھلی. ہم کہ 4 سے 5 ہزار روپے آسانی سے دے سکتے ہیں، ہم کہ 5 فرینڈ ہیں، اگر 1000 1000 روپے ہم دیں تو ان کا انشاءاللہ منتھلی ہو جائے گا اس بار کا. اگلے منتھ میں اللہ تعالیٰ اور راستے نکالے گا. تو یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. مسکین وائٹ کالر لوگ جو آپ کے معاشرے میں ملیں گے، آپ کے پڑوس میں ملیں گے، آپ کے گھر میں بھی مل سکتے ہیں. فیملی الگ الگ ہو جاتی ہے، ان کی کچن الگ الگ ہو جاتی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی فائنینشلی کنڈیشن ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں. یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. ان کی مدد کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے. مدد نہیں کر سکتے تو کوشش تو کریں. کوشش کرنا بھی جہاد کرنے والے کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. یعنی بیواں اور مسکینوں کی مدد کرنا ایک تو جہاد کے برابر بتا دیا اسی حدیث میں، دوسرا اس چیز کے وہ اس شخص کے برابر بتا دیا تو جو دن میں تو روزے رکھتا ہے، یعنی کوئی حرام کام نہیں کرتا، روزے رکھتا ہے تو مکمل تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بے-حیائی نہیں کرتا، فحش کلام نہیں کرتا، ہر چیز سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یعنی دن اور رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے معاش کا انتظام ہو جائے، بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے. اس شخص کے برابر ہو گیا. اس نے کوئی رات کو عبادت نہیں کی، دن میں روزہ نہیں رکھا، ان لوگوں کا درجہ اس نے پا لیا صرف مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کر کے. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اس پہ رکھا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا اسلامک مینیفیسٹو کا یہ آرٹیکل یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیا آرٹیکل ہے کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن میں ہونے چاہیے. تو ایک آرٹیکل یہ ہونا چاہیے کہ جہاں رشتہ داروں کے رائٹ پروٹیکٹ رہیں. رشتہ داروں میں اگر کوئی وہ ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو پہلی حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی کفالت اس کے رشتہ داروں کے اوپر ڈالی جاتی ہے. اس کا چاچا دیکھا جاتا ہے، اس کا تاؤ دیکھا جاتا، جو اس کے قرابت دار ہوتے ہیں انہی کے اوپر ان کی کفالت ڈالی جاتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. پھر جو مسکین ہوں گے، اسلامک ریاست میں ان مسکینوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا حکومتی لیول پر. جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ حکومت کے پاس جائے گی، اور حکومت اس میں سے اپنے حکومت کو پتا ہوگا کہ کتنے مسکین ہیں، وہ کس شہر میں، ان کا وظیفہ باقاعدہ مقرر کیا جائے گا. بیوہ جتنی ہیں ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہوگا، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا. یتیم ایسے یتیم کتنے جن کی کفالت ان کے رشتہ دار
कोई नहीं उठा रहा है या कोई रिश्तेदार उनका नहीं है, उनकी किफालत का जिम्मा हुकूमत के ऊपर होगा। तो ये हुकूमती लेवल की बातें हैं। जो मस्जिद है ना, इसको सिर्फ आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आप वो ना समझें कि मस्जिद है तो बस 5 वक्त की नमाज पढ़नी, उसके बाद उसमें ताला लगा दें। भाई मस्जिद में बोलना हराम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लोग निकाल कर लाते हैं। हराम बात बोलना मस्जिद में भी हराम है, बाहर भी हराम है। झूठ बोलना मस्जिद में भी हराम है, बाहर भी हराम है। अगर कोई आप बात कर रहे हैं नॉर्मली, अगर आप किसी की खैरियत भी ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबी एक पार्लियामेंट का दर्जा लेती थी। नॉन मुस्लिम आते थे वहां पर, आर्ग्यूमेंट करते थे। क्या मसला है? क्या बना दिया मस्जिद को? मस्जिद और मंदिर में कोई फर्क ही नहीं किया आपने। मंदिर होता है बस पूजा पाठ की, सुबह शाम की, और उसमें ताला लगा के रख दिया। वही तुमने हाल मस्जिद का कर दिया। मस्जिद एक इस्लाम का सेंटर है। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत निजाम अल्लाह ताला ने हमें बना के दिया है। अगर हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो देखें, हर हर मोहल्ले में कितने घर होंगे? 200 250 घर पे। जो हमारे यहाँ का डाटा है कि 200 घरों पर एक मस्जिद, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पास है कि 200 अगर घर हैं मुसलमानों के, तो वहां एक मस्जिद होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डाटा है। तो आप ये लगाइए कि 200 घर पे एक मस्जिद है, तो एक मस्जिद की एक कमेटी है, वो कमेटी में कुछ मेंबर भी होते हैं। जैसे ही वो इमाम की सैलरी के लिए हर घर मतलब तनख्वाह उगाते हैं मंथली, या हर घर जाते हैं, तो क्या एक मस्जिद में उन 200 घरों का सारा डाटा मौजूद नहीं होना चाहिए कि हमारे इन 200 घरों में, हमारे इस मोहल्ले में कितनी बेवाएं हैं, उनकी लिस्ट मस्जिद के पास होनी चाहिए। कितने मिस्कीन हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। कितने गरीब हैं, उनकी लिस्ट उनके पास होनी चाहिए। जैसे वो उगाई करते फिरते हैं कि आज ये प्रोग्राम है, आज ये है, आज इसका जुलूस निकालेंगे, इस इतने इतने रुपए घर पड़ रहे हैं, और 200 रुपए एक घर पे पड़ रहे हैं, 500 रुपए एक घर पे पड़ रहे हैं, या हमें और मस्जिद को थोड़ा बढ़ाना है, इसके लिए इतने इतने रुपए एक एक घर पे पड़ रहे हैं। क्या सारा डाटा एक जगह कलेक्ट होके कितनी आसानी से पता चल जाएगा? क्या मोहल्ले के बाकी लोग उनकी मदद नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो उनके पड़ोसी भी हुए। पड़ोस को तो पहला हक होता है रिश्तेदारों के बाद। तो मोहल्ले की प्रॉब्लम मोहल्ले में ही सॉर्ट आउट हो जाए। और हर मोहल्ले में 2 4 घर ऐसे होते हैं, इतने खाते पीते वो घर होते हैं कि वो पूरे मोहल्ले का मतलब खाने पीने का इंतजाम वो अकेले कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। क्या हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते? लेकिन ये तो एक, हम आज के टाइम में ये बात इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हर मस्जिद में डाटा रिकॉर्ड मौजूद हो, और मस्जिद कमेटी के पास सारा ये मौजूद हो, और उसमें मतलब कि उसको अपडेट भी किया जाता रहे वक्त वक्त पे कि कोई मिस्कीन है, एक वक्त में वो मिस्कीन था, लेकिन कुछ टाइम बाद अल्लाह का शुक्र है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई, उसको रिमूव करें उस लिस्ट से, वो किसी और को दाखिल करें। कोई गरीब है तो वो, भाई ताउम्र ही गरीब है वो, हर साल उसी को जकात देते हो, वो फिर भी अमीर नहीं हो रहा। इसका मतलब आपकी जकात नहीं जा रही उसको। हम प्रैक्टिकली ये आज के टाइम में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामिक रियासत हो, बाद इस्लामिक रियासत की चल रही है, तो वहां ये सारा डाटा हर मस्जिद पर होगा। और हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है, यानी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद, ये सारा डाटा वहां जाएगा। वहां से फिर हर हर स्टेट में ये डाटा स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और जो फंड ऊपर से आएगा, जो जकात के पैसे ऊपर से आएंगे, वो सब फिर तकसीम करना कितना आसान हो जाएगा। कोई बीच में करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा डाटा एज इट इज वेरीफाई हुआ हुआ। तो क्या कोई मिस्कीन मुआशरे में बचेगा? कोई नहीं बचेगा। क्या कोई बेवा औरत जिसकी किफालत का जिम्मा किसी पे नहीं हो, क्या वो अपनी जिंदगी आगे की सरवाइव करने में उससे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई नहीं होगी। तो ये चीजें हमें देखनी है। ये हुकूमती लेवल पे हमें ऐसा एक आइडियल मॉडल हमें मतलब कि बनाकर दिखाना है। हमारी मस्जिदें अब सिर्फ इबादत की जगह रह गई हैं। मस्जिद और मंदिर में हमने कोई फर्क नहीं छोड़ा है। बस ये है कि यहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वहां वो बुत की इबादत करते हैं। बस इतना फर्क है जो हमने रखा है। बाकी सेम चीजें हमने वही रखी हैं, कोई हमने उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। मस्जिद का जो एक सेंटर थी इस्लाम का, वो हमने उससे छीन लिया। मस्जिद में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होने चाहिए।
हमारी मस्जिदें ऐसी हों कि बच्चे आए तो उनके लिए थोड़ा वो थोड़ा कुछ खेलने का भी हो पीछे की साइड। बच्चों के लिए लाइब्रेरी अलग हो, उनकी स्टोरीज अलग हो, बड़ों के लिए लाइब्रेरी अलग हो, नॉन मुस्लिम के लिए अलग किताबें की वहां मौजूद होनी चाहिए, और उस लैंग्वेज में होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज को वहां के लोग जानते हैं। आपने किताबें रख दी उर्दू में, उर्दू आपके घर में नहीं आती ठीक से हर किसी को, कौन पढ़ेगा उस उर्दू को? वो रखी है, धूल जम जाती है उन पे, एक साल में एक बार सफाई कर देते हैं। तो इस्लाम में यही एक सिस्टम है कि जहाँ पर हमें अलग अलग वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कमेटी, हमें मस्जिद से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और मस्जिद को ये ऐसा बनाया गया है, हुकूमत को अगर वक्त के खलीफा को कोई ऐलान करना है तो वो क्या करेगा, अपनी शूरा कमेटी में जाएगा और ऐलान कर देगा उस बात का। शूरा कमेटी के जो मेंबर होंगे अपनी अपनी वो स्टेट जो भी गवर्नर होंगे उनको ये हुक्म दे देंगे, वो अपने अपने स्टेट में ये हुक्म पहुंचा देंगे, और जुम्मे के दिन एक ही वक्त में वो ऐलान हर कोई लाइव सुन सकता है अपनी मस्जिद से। इतना प्यारा निज़ाम है ये, हम इसकी कदर नहीं करते। तो मिस्कीन जो है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेगी, और हुकूमत को वो पता रहेगा कि उसके मोहल्ले में कौन मिस्कीन है। मैं अपने मोहल्ले का ब्यूरो वो किसी को भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन मुस्तहिक है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हमें पता है ऐसे ही हर शख्स अपने मोहल्ले का ब्यूरो दे सकता है। तो क्या मस्जिद कमेटी के पास एक वो नहीं जानी चाहिए? क्या उनके लिए बड़ा मुश्किल है? जब वो हर घर से उगाही करने जाते हैं तो उन्हें तो वैसे ही पता लग जाएगा, भाई इस घर से हम इमाम साहब की सैलरी की उगाही करने जाते हैं तो एक बार में नहीं मिलती, ये 2 या 4 दिन लेट करते हैं, तो इसका मतलब आपको तहकीक करनी चाहिए क्या बात है, सब खैरियत है। पर 200 400 रुपये 500 रुपये किसके लिए मुश्किल है? किसी के लिए नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए, तो मिस्कीन को उसका हक देना है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो कैटेगरी बताई है वो है मुसाफिर की, कि मुसाफिर को उसका हक देना है। मुसाफिर के भी हक होते हैं जो कि हमारे ऊपर हैं। मुसाफिर कौन होता है? जो हालत सफर में होता है, यानी अपने घर से दूर होता है, अपने घर से जो सफर की मिकदार बताई है, जहां नमाजें इंसान की वो कसर हो जाती है, जहां आधी हो जाती है, वो अलग अलग कौल है। 70 किलोमीटर के बाद, 88 किलोमीटर के बाद वो माना जाता है कि वो हालत सफर में है। अगर कोई इतनी दूरी पर है अपने मकाम से तो उसको हालत सफर में उसको काउंट कर लिया जाता है। या इतने की नियत करके वो घर से निकला, भले भले ही घर से निकले हुए 5 किलोमीटर दूर उसको हुए हो, लेकिन उसकी नियत है 90 किलोमीटर जाने की, हाँ, तो वो हालत सफर में ही कहलाएगा, वो मुसाफिर ही कहलाएगा। तो मुसाफिर को उसका हक देना है। तो मुसाफिर का हक क्या है? मुसाफिर का हक ये है कि 3 दिन तक वो जहां भी जाए उसके खाने का इंतजाम, उसके ठहरने का इंतजाम मोहल्ले वालों पर वाजिब है, जिस शहर में भी वो जाए। ये है मुसाफिर का हक। उसको कोई मुसीबत हो तो उस मुसीबत को दूर किया जाए मुसाफिर की। मुसाफिर कहीं जाके अगर हाथ फैलाए तो उसकी परेशानी को दूर किया जाए, उसको खाने को दिया जाए 3 दिन तक। 3 दिन तक मुसाफिर की खातिरदारी का हुक्म दिया गया है। 3 दिन के बाद वो फिर अपने अगले मकाम पर जा सकता है। कितना प्यारा निज़ाम है। अगर कोई हालत सफर में है तो वो एक ही मकाम पर तो 20 दिन रुकेगा नहीं, वो हद से ज्यादा 1 दिन रुक जाएगा, 2 दिन रुक जाएगा, 3 दिन रुक जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं, मतलब कि नहीं रुकेगा। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बताया है कि 3 दिन तो करें आप, फिर वो आगे चला जाएगा, आगे वाले देखेंगे, आगे वालों पे वाजिब हो जाएगा। तो ये है, मुसाफिर को उसका हक देना है। अच्छा, हमें मुसाफिर की मदद क्यों करनी है? भले ही जो मुसाफिर है वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अपने शहर का वो सबसे अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है, आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप यूपीआई कर लेंगे, आप कुछ कर लेंगे, लेकिन आज भी वो कोई भी फंस सकता है। किसी का फोन चोरी हो जाए, वो घर वालों से दूर हो जाए, वो भले ही अपने शहर का अमीर हो, लेकिन अगर वो अपने शहर से 1000 किलोमीटर दूर है तो वहां पर वो खाने पीने का मोहताज हो सकता है, उसका फोन चोरी हो सकता है, उसके सारे मतलब कि वॉलेट के जितने भी पैसे हैं वो मतलब कि चोरी हो सकते हैं। और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से।
कि लोग उतरे हैं, ट्रेन से उतरे हैं और 200 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं, 400 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं। ट्रेन से उतर के स्टेशन पे ही वो चोर बैठे रहते हैं। वो उनका फ़ोन और पर्स वो कैसे गायब करते हैं? छीन कर लेकर जाते हैं, भागते हुए मैंने देखा है। छीन कर लेकर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? ना उसके पास पैसा है, ना फ़ोन है, ना किसी को कुछ कर सकता है। तो फिर क्या मुसीबत में है, लेकिन मुसाफ़िर तो है। अगर वो उसी सिटी का हो तो पैदल-पैदल भी घर चला जाए, लेकिन वो उस सिटी का नहीं है। तो हम उसकी कंडीशन देखेंगे मुसाफ़िर की, तो उसकी मदद करना तो बिल्कुल वाजिब होना ही चाहिए हमारे पास। तो इसलिए मुसाफ़िर की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने शहर का भी अगर सबसे अमीर है, तो लेकिन हालत सफ़र में उसको ज़रूरत पड़ सकती है कि वो उसको मदद की ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि मुसाफ़िर को उसका हमें हक देना है और मुसाफ़िर को ऐज़ अ मेहमान भी हम ट्रीट करें, क्योंकि मुसाफ़िर हमारा मेहमान ही तो है। मेहमान आते हैं आपके घर, ठीक है? तो मेहमान की आप खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाज़ी करते हैं, तो मुसाफ़िर भी तो आपका मेहमान है। वो अल्लाह ताला ने भेजा है आपके घर, अल्लाह ताला ने हक भी रखा है उसका, तो ऐज़ अ मेहमान उसको ट्रीट करें, उसकी प्रॉब्लम सुनें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में 6018 नंबर पर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, यानी जिसका ईमान हो अल्लाह पर, जिसका ईमान हो आखिरत पर, तो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। एक बात तो ये कही कि पड़ोसी के ताल्लुक से उसको तकलीफ ना पहुंचाए, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, तो वो अपने मेहमान की इज्जत करे। मुसाफिर है, वो भी तो मेहमान है, उसकी इज्जत करे। अच्छा, एक बेनिफिट और मैं बताऊँ आपको मुसाफिर की मदद करने का। अगर आप मुसाफिर की मदद करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक तो अल्लाह ताला की रज़ा, ये तो बिल्कुल मिलेगी। इससे बड़ी बात क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म पे आप अमल कर लेंगे, इससे बड़ी बात क्या है? एक और बात है, जो आपका दुनियावी मतलब बेनिफिट हो सकता है और आखिरत में भी बेनिफिट हो सकता है। वो हदीस हमें मिलती है सुनन तिरमिज़ी में 3448 नंबर पे है, सुनन इब्न माजा में भी वो हदीस हमें 3862 नंबर पे मिलती है कि हमें क्या बेनिफिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 तरह की दुआएँ कभी जो कबूल होती ही होती हैं, उनको अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। 3 तरह की दुआएँ हैं। 3 दुआओं को हमेशा कबूल करता है अल्लाह ताला। उसमें पहला बताया मज़लूम की दुआ, जिस पर ज़ुल्म किया गया हो और वो कोई दुआ करे ज़ालिम के खिलाफ, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। दूसरी, मुसाफिर की दुआ, और तीसरी है बाप की दुआ, अपने बाप की बद्दुआ अपने बेटे के हक में। तो ये है, तो मुसाफिर की दुआ वो हालत सफ़र में है। अगर आप उसकी परेशानी दूर करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, तो बदले में वो, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी भी फिरके से है, किसी भी मसलक से है, आपको दुआ ज़रूर देगा। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए कि ऐसी हालत में जहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, इन भाई ने मेरी मदद की है। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है? अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, हमेशा कबूल होती है। तो वो दुआ आपको लग जाएगी उसकी, तो आपका कितना बेनिफिट है? खुद सोचें आप, कितना बेनिफिट है आपका, अगर वो दुआ आपको लगेगी। और मुसाफिर जो होता है, वो मुसीबत में ही मतलब कि फँसा होता है कि उसका सब कुछ चोरी हो गया, या उसको खाने की हाजत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है? या उसके पास आगे का वो सफ़र करने का खर्चा नहीं है, तो उस वो मुश्किल में मतलब फँस सकता है, और हम उसको मुश्किल से निकालेंगे, तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अज़्र रखा है। सही बुखारी की एक और हदीस मैं आपको बता दूँ, 2442 नंबर पे वो हदीस आपको मिलेगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए उस पर ज़ुल्म ना करें और ना ज़ुल्म होने दें। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया
کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. یعنی جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص وہ کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا. تو کتنی پیاری یہ حدیث ہے. آپ اگر کسی کی وہ ضرورت پوری کریں گے تو اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. آپ کسی کی مصیبت دور کریں گے, آپ مسافر ہے مصیبت میں, آپ اس کی مصیبت دور کریں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے آپ کی مصیبت دور کر دے گا اور بڑی مصیبت کو دور کی کر دے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, مسافر کا حق ہے 3 دن تک اس کو محلے والوں پہ واجب ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قانون یہاں بتا رہا ہے یہ حکومتی لیول کے, ریاستی لیول کے ہیں. تو مسافر کے لیے حکومت یہ انتظام کرے, ہر شہر میں ایک مسافر خانہ حکومت درج کرائے گی جہاں مسافر ٹھہر سکے, وہاں اس کو کھانا حکومت کی طرف سے فری ملے, وہاں حکومت کی طرف سے کھانا فری ملے 3 دن تک. اس کی جو بھی ہے آئیڈینٹی, اس کا جو کارڈ ہے وہ کارڈ لے کر اس کا نام درج کریں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو فارمیلٹیز ہیں اس کو نبھایا جائے تاکہ جینون لوگ ہی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. لیکن مسافر خانہ ہونا چاہیے ہر شہر میں. ہر شہر میں مسافر خانہ ہوں گے تو کیا ہوٹل کی ضرورت پڑے گی؟ ہوٹل کی ضرورت پڑے گی کسی کو؟ یا مسافر خانے ہوں گے یا اس کے رشتے دار ہوں گے. یا تو وہ رشتے داروں میں جائے گا اس شہر میں اگر رشتے دار ہوں گے, نہیں ہے تو مسافر خانے میں جائے گا. تو کیا ہوٹل انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو یہ ٹورسٹ انڈسٹری اتنی بڑی یہ اتنے مہنگا مہنگا چارج کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہوٹل میں یہ لگژری دیں گے, یہ دیں گے. ہاں پھر یہ رہیں گی, اسلامک حکومت میں بھی ہوٹل وغیرہ رہیں گے کہ بھائی جو پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ الگ سے فیسلٹیز وہ ہوٹل والے دینا چاہیں تو وہ پے کرے گا, وہ دے گا. اسلامک حکومت میں ہوٹل کو بند نہیں کیا جائے گا. لیکن جو نارمل مسلمان ہیں, جو عام مسلمان ہیں, ان کے ٹھہرنے کے لیے ایک معیاری لیول کا وہ کمرہ تیار کر کے ان کو دیا جائے گا, مسافر خانہ بنایا جائے گا. وہاں پر ٹھہرنے کے لیے اس سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. 3 دن تک اس کو کھانا فری دیا جائے گا. یہ ذمہ داری حکومت کی ہوگی. حکومت اس کو مینج کیسے کرے؟ ٹھیک ہے, اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے کرے, جو صدقے حکومت کے پاس آئیں گے اس کے اندر سے کرے. ٹھیک ہے, عوام کا پیسہ جو حکومت کے پاس رہے گا وہ اس کے اندر سے انتظام کرے گی. تو یہ حق ہے مسافر کا. یعنی وہ جو سوسائٹی وہ قائم ہوگی اس میں رشتہ داروں کے جو رائٹ ہیں اس کو بھی حکومت پرزرو کرے گی. جو مسکین ہیں ان کے رائٹ کو بھی حکومت پرزرو کرے گی. جو مسافر ہیں ان کے رائٹ کو بھی حکومت پرزرو کرے گی. اور یہ ہے اصل میں یہ جو باتیں ہیں یہ ہے کہ آپ کو ان رائٹ کو پرزرو کرنے میں حکومت کی طرف سے مال بھی لگے گا, اور انسان کو انڈیویجول طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ کو مدد کرنی ہے. حکومت بھی کرے گی اور ہر انسان کی اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ادا کرنے والا بنے جس میں مال بھی خرچ ہوگا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس معاشرے میں فضول خرچی سے لوگوں کو روکا کہ آپ اپنا مال ویسٹ نہ کریں, اس کو صحیح کاموں میں لگائیں. جہاں لگنا چاہیے وہاں آپ کو لگانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آگے فضول خرچی نہ کرو. یعنی جو جن کے حق ہیں وہ آپ ادا کرنے والے بنے. صحیح جگہ آپ پیسہ لگائیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ پیسہ لگائیں, اپنی جو بیسک آپ کی نیڈ ہے اس کو آپ پورا کرنے پہ پیسہ لگائیں. لیکن فضول خرچی نہ کریں آپ. تو فضول خرچی جیسا کہ آیت میں بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ فضول خرچی ہوتا کیا ہے. فضول خرچی اسراف کو کہتے ہیں, عربی میں اسراف, اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. تو اسراف کے جو میننگ ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کہ اسراف ہے کیا چیز, اصل فضول خرچی ہے کیا چیز. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ فرقان میں, ہم اس کو فضول خرچی کو پڑھ کر آ چکے ہیں. لیکن ایک بار یہاں پھر ہم اس چیز کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ فضول خرچی اصل میں ہے کیا. تو اسراف ہے کیا اصل میں؟ اسراف جو ورڈ ہے وہ 3 چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں. ہم تینوں چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارا مال فضول خرچی میں تو نہیں جا رہا, صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. 3 کیٹیگری ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان 3 کیٹیگری کے آپ نوٹس بنا لیں,
अपने दिमाग में आप फिट कर लें। आप देखें मेरा माल अगर इन 3 कैटेगरी में से कहीं न कहीं लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फ़ुज़ूल खर्ची कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 अ, वो चीज़ अल्लाह ताला ने बताई क्राइटेरिया कि अगर ये होगा तो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं होगा, अगर ये होगा तो फ़ुज़ूल खर्ची हो जाएगा। पहला फ़ुज़ूल खर्ची क्या है? कि नाजायज़ कामों में आदमी अपनी दौलत खर्च करे, चाहे वो 1 ही रुपया क्यों नहीं मतलब क्यों ना हो, चाहे 1 ही पैसा क्यों ना हो। अगर इंसान है, उसका पैसा अगर नाजायज़ कामों में लग रहा है, तो वो फ़ुज़ूल खर्ची में दाखिल है। ये इसराफ़ की डेफ़िनिशन के अंदर आता है। अगर उसका पैसा नाजायज़ कामों में लग रहा है, तो अब इंसान देखे, मैं कितने नाजायज़ कामों में मतलब पैसा लगाता हूँ अपना। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है कि जायज़ कामों में भी हद से आगे आदमी ना निकले। यानी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च ना करे। यानी जायज़ कामों में मतलब जो पैसा लगाना है, वो उतना ही लगाना है जितना लगना चाहिए, उससे ज़्यादा ना बढ़े। यानी वो जायज़ कामों में भी अपनी जो दौलत है, ऐश करने में, अपना ठाट-बाट दिखाने में उसको वेस्ट ना करे, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची में आएगा। यानी पहला जो कैटेगरी थी वो नाजायज़ कामों में पैसा लगाना, दूसरी कैटेगरी है जायज़ कामों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा देना, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची है। तीसरी जो कैटेगरी है वो इसराफ की ये है कि नेकी के कामों में खर्च करना, नेकी के कामों में खर्च करना। नेकी के काम क्या? कि मुसाफिर की मदद करना, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची हो सकता है। मिस्कीन को देना, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची हो सकता है। रिश्तेदारों पे खर्च करना, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची हो सकता है। ये कैसे होगा फ़ुज़ूल खर्ची? ये होगा आपकी नियत के ऊपर। यानी तीसरी कैटेगरी ये है, नेकी के कामों में खर्च करना मगर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए। अगर आपकी नियत लोगों को दिखाने की हो गई, तो ये माल भी आपका जो आप अल्लाह की राह में लगा रहे हो, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची कहलाएगा। क्योंकि ये आपने इस माल को आपने वेस्ट कर दिया, फ़ुज़ूल खर्ची मतलब की कर दिया। ये इसराफ़ हो गया। आप अल्लाह के लिए करते तो सही जगह लगा, आपको आखिरत में अज्र मिलता। लेकिन आपने दिखाने के लिए लगाया, लोगों के लिए, आपका माल तो वेस्ट गया, अल्लाह ताला कोई अज़्र उस पे आपको अज़्र नहीं देगा। वो भी फ़ुज़ूल खर्ची हो गई। यानी गरीब की मदद करके भी आप फ़ुज़ूल खर्ची कर सकते हैं, क्योंकि उसका अल्लाह ताला से आपको कोई अज़्र नहीं मिलेगा, तो वो माल आपका वेस्ट गया है ना, हो गई फ़ुज़ूल खर्ची। जो हम राशन की किट डिस्ट्रीब्यूट करके सोशल मीडिया पे बड़े ठाट-बाट से जो हम वो डालते हैं फ़ोटो उसका, तो ये किस लिए डालते हैं हम? ये किस लिए डालते हैं? कहीं ये तो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं हो रहा हमारा? हमारी राशन की किट जो फ़ुज़ूल खर्ची में तो नहीं चली गई? तो ये हमें देखना है। तो फ़ुज़ूल खर्ची की 3 कैटेगरी अ, हमें मिलती हैं। पहला ये है कि नाजायज़ कामों में आदमी पैसा लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल शराब में या डीजे पे, या जो ऐसी-ऐसी रस्में हैं, हमारे मुआशरे में होती हैं जो कि नाजायज़ हैं, उन पर आदमी पैसा लगाए, तो ये भी फ़ुज़ूल खर्ची है। दूसरा, जायज़ कामों में हद से आगे बढ़ जाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उस काम में पैसा लगा देना। उस काम में इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी जितनी है, वो जितनी हमने लगा दी, ये भी फ़ुज़ूल खर्ची है। तीसरी है, नेकी के कामों में खर्च करना मगर सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, तो ये भी फ़ुज़ूल खर्ची हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे हम अपना एक-एक पैसा हम देख सकते हैं कि हमारा एक-एक पैसा सही जगह लग रहा है या फ़ुज़ूल खर्ची में लग रहा है। नाजायज़ कामों में तो सिरे से ही हराम हो गया। अब हमारे मुआशरे में कितने नाजायज़ काम होते हैं कि वो शादी के फंक्शन पे आप देख लीजिए कितने कितने नाजायज़ काम हैं। जहाँ आपका अगर 1 रुपया भी लग रहा है तो वो फ़ुज़ूल खर्च है। दूल्हे को लड़की वालों के घर जब वो जाता है निकाह के बाद, विदाई से पहले उसको सलामी के लिए बिठाया जाता है। सलामी कहते हैं कि वो सालियाँ आती हैं महकती हुई और वो दूल्हे साहब को सलाम करती हैं और केक, रसगुल्ले वगैरह उनके लिए लाती हैं और गिफ्ट वगैरह उनको देती हैं, और जो दूल्हे के लड़के होते हैं वो गोल घेरा बना के बैठे होते हैं और वो सलामी हो रही थी दूल्हे की। ये तो हराम है ना? गैर-महरम आपके सामने आ रही है। तो अगर इस सलामी पे आपका पैसा लग रहा है, फ़ुज़ूल खर्च है, फ़ुज़ूल खर्च है। जी, हल्दी की सेरेमनी हो रही है। लड़का बैठा है और जो गैर महरम आ रही हैं, वो हल्दी उठा रही हैं और लड़के के मतलब कि उसकी कमर पे, उसके सीने पे, उसके मतलब कि हाथ,
हाथों से हल्दी लगा रही हैं। जी ये क्या है? ये भी तो नाजायज काम है। अगर इस सेरेमनी पे आप पैसा लगा रहे हैं तो ये भी आपका फजूल खर्ची में दाखिल होगा। बहुत सी चीजें हैं, हम देखे हैं। सारी चीजें यहाँ बयान नहीं होंगी, यहाँ पे सिर्फ उसूल बताए जाएंगे। नाजायज कामों में आपका एक भी पैसा लग रहा है तो फजूल खर्च है। जायज कामों में आपका जरूरत से ज्यादा पैसा लग रहा है तो फजूल खर्च है। अल्लाह ताला की राह में नेकी के कामों में आपका पैसा लग रहा है मगर अल्लाह ताला की रजा के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, तो फजूल खर्च है। ये भी फजूल खर्च है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और इसराफ की जो मनाही है वो अहदीस में भी हमें बता दी गई है। वो काफी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सही बुखारी में हदीस है 2408 नंबर पे। उसमें भी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने तुम पर माँ बाप की नाफरमानी और लड़कियों को जिंदा दफन करना और वाजिब हुकूक की अदायगी ना करना और दूसरों का माल वो नाजायज तरीके से दबा लेना हराम कर दिया है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया और फजूल बकवास करने और कसरत से सवाल करने और माल बर्बाद करने को मकरूह करार दिया है। माल बर्बाद करने को, तो माल बर्बाद यही तो है फजूल खर्ची में। इसको कि मकरूह करार दिया गया है। और यहाँ तक कि जैसा कि मुताला में भी बात आई थी कि जो हम वुजू करते हैं, वुजू में भी अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी फजूल खर्ची में आएगा। सुनन इब्ने माजा में हदीस है 425 नंबर पे कि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार एक दफा वुजू कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो फरमाया ये क्या इसराफ है, यानी फजूल खर्ची है? तो हजरत साद ने कहा क्या वुजू में भी फजूल खर्ची होता है अल्लाह के रसूल? क्या इसराफ वुजू में भी मतलब होता है? मैं तो अल्लाह ताला के लिए वुजू बना रहा हूँ, मैं अगर ज्यादा पानी इस्तेमाल भी कर लूंगा तो नमाज के लिए ही है। क्या मसला है इसमें? क्या इसमें भी इसराफ होता है? इसमें भी मतलब फजूल खर्ची होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, चाहे तुम बहते दरिया के किनारे पर बैठे हो, चाहे तुम्हारे सामने बहता दरिया हो, तुम्हारे पास बहते दरिये से मुराद क्या, चाहे तुम्हारे पास पानी वो काफी मिकदार में हो, इतनी मिकदार में हो कि वो कभी तुम्हारे पास से पानी खत्म ना हो, तब भी आपको इसराफ नहीं करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी है पानी की भी। लेडीज जो होती हैं और वो घर की जब धुलाई करने पे आती हैं तो वो जो टैंक है उसकी टोटी मतलब कि वो खुली पड़ी है और पाइप लगा पड़ा है, भाई पूरा घर धुल रहा है, वो बंद ही नहीं हो रही टोटी। जितने की जरूरत है उतने में आप साफ कर लो, बड़ा कीमती पानी है। जिसके पास नहीं है उनसे पूछ, उनसे जाकर पूछें जिनके लिए वो दिमाग लिमिट सेट खराब है कर क्या दी मेरा? जाती है, जिनके लिए लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको 500 लीटर ही पानी मिलेगा आज, उसी में आपको अपना सब कुछ करना है, तो उनसे जाके इसका आप पूछ सकते हैं। और खाने में भी इसराफ हो सकता है, खाने में भी फजूल खर्ची होती है। एक हदीस में बस आपके आपके सामने रखूंगा। सही बुखारी की हदीस है 5306 नंबर पे। हजरत अनस से ये हदीस रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो खाना खाते थे तो आखिर में अपनी उंगलियां वगैरह भी वो साफ कर लिया करते थे, यानी उसको मतलब कि चाट लिया करते थे, उसको साफ कर लिया करते थे। तो आपने फरमाया जब आप में से वो किसी का लुक्मा गिर जाए, यानी खाने का एक लुक्मा भी जो खाने का निवाला है, अगर वो गिर जाए तो वो उससे नापसंदीदा चीज को दूर कर दे और उसको खा ले, यानी उस पे से अगर कुछ ऐसी चीज लगी है जो उसको नापसंदीदा है उसको हटा दे और उसको खा ले, यानी उसको भी वेस्ट नहीं करना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रीजन बताया और उसको शैतान के लिए ना छोड़े, यानी जो खाना इंसान अपनी प्लेट में छोड़ता है वो शैतान के लिए छोड़ता है। वो फिजिकली तौर पे आपको नहीं दिखता कि शैतान खा रहा है उसको, शैतान खाता है उसको, पेट भरता है उसका। जिस घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर बंद ना किया जाए तो उस घर में शैतान कहता है आज मेरे रहने का इंतजाम हो गया, शैतान दाखिल हो जाता है। और जिस घर में वो प्लेटों में खाना छोड़ा जाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना ना खाया जाए, शैतान कहता है आज हमारा खाने का भी इंतजाम हो गया। जिस घर को बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर उसको बंद किया जाए और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए और खाने को छोड़ा ना जाए, तो शैतान कहता है आज ना हमारे लिए रहने का इंतजाम हुआ, ना हमारे लिए इस घर में खाने का इंतजाम हुआ। तो हमें देखना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ साफ हदीस है
کہ अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जो जो वो आपका लुकमा भी गिर रहा है ना, उससे नापसंदीदा चीज को दूर करके उसको भी उठा लो, उसको भी खा लो, उसको शैतान के लिए ना छोड़ो। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। तुम नहीं जानते, आपके सामने जो प्लेट है, आपने उसमें से खाना एक साइड से मतलब शुरू किया, अल्लाह ताला ने कौन से लुकमे में बरकत रखी है, क्या पता जो खाना आप छोड़ रहे हैं उसी में बरकत थी, उसी में बरकत थी, उसी को आपने खाया नहीं, उसी को आपने छोड़ दिया। तो खाने में भी हमें फजूल खर्ची नहीं करनी है। हम शादी ब्याहों में देखते हैं कि तरह तरह के डिशेस, मतलब कि लाइन से स्टॉल लगे हुए हैं, आदमी जाते ही कंफ्यूज, कहाँ से शुरू करूं, वो कोई चीज स्किप तो ना हो जाए कहीं, एक आध चीज छूट तो ना जाए। लिया, एक प्लेट ली कि भाई साहब ये देना, देने। अब वहां तो बन रहा है मतलब कि ठेके पे। अब वो कि हमने खा के देखा, टेस्ट अच्छा नहीं, उसको पूरे के पूरे को डस्टबिन में डाल दिया। अगले पे चले, भाई आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, आप ये मतलब ये भी टेस्ट करेंगे। इंसान सोचता है कोई चीज, मतलब आप कहीं दावत में गए हैं, जो आपका दिल कर रहा है आप इत्मीनान से खाइए, सुकून से, जितना पेट है उतना खाइए। मोमिन कभी पेट भर के नहीं खाता ऊपर तक। आप ये सोच रहे हैं कि आपको खाना कभी मिलेगा ही नहीं, आपने वो जाते ही अपनी प्लेट में इतना रख लिया चिकन, इतनी आपने पकौड़ी उसमें डाल ली, इतने आप उस प्लेट में आपने कबाब डाल दिए कि जैसा आपने कभी खाए नहीं हो। फिर वो आपसे खाए नहीं जा रहा है, क्योंकि शादी विवाह का खाना बनता है ठेके पे, वो तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो आपको होटल पे मिलता है। आप वही सोच रहे हैं कि होटल वाला टेस्ट आएगा। फिर आपने दो तीन वो खाए, फिर बाकी का क्या करें, मजा तो आ नहीं रहा, डस्टबिन में डालो इसे। ये फजूल खर्ची नहीं है, ये शैतान के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये हम उस पे भी जुल्म कर रहे, उस पे भी तो जुल्म नहीं कर रहे हैं कि जिसने हमारे लिए अरेंजमेंट किया, उसका तो नुकसान हो रहा है, और शैतान के लिए भी छोड़ रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। और आदमी अपने माल का जिम्मेदार है, वो फजूल खर्ची वो बिल्कुल भी ना करे, वो अपने माल का भी जिम्मेदार है। सुनन तिरमिजी में हदीस है 2417 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम अल्लाह ताला के सामने से अपने कदम भी ना हटा सकेगा जब तक पांच चीजों के जवाब ना दे दे। वो कदम भी नहीं हटा सकता। पहला, उसने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, दूसरा जवानी कहाँ गुजारी, तीसरा माल वो कहाँ से कमाया, हलाल से या हराम से, चौथा क्वेश्चन कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च किया। देखें, एक बंदा 100% माल हलाल से कमाता है, अब उसकी मर्जी वो कहीं भी खर्च करे, हिसाब इसका भी होगा आपने खर्च कहाँ किया, माल खर्च कहाँ किया। फजूल खर्ची में तो नहीं कर दिया, जायज कामों में जरूरत से ज्यादा तो नहीं लगा दिया, नेकी के कामों में लगाया तो अल्लाह के लिए लगाया, लोगों के लिए लगाया, हराम कामों में तो नहीं लगा दिया। इसका भी हिसाब देना है आपको। और जब तक इब्ने आदम अल्लाह ताला के सामने से अपने कदम नहीं हटा सकता, और हर नेमत का हिसाब अल्लाह ताला को देना है, तो अल्लाह ताला ने मना किया है कि फजूल खर्ची ना करो। और फिर बताया है कि फजूल खर्च जो लोग हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। मुवज्जरीन, अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल मुवज्जरीन, यानी वो शैतान के भाई हैं। अभी अभी कि शैतान के भाई जो ये अरबी में वर्ड आया है मुवज्जरीन, ये होते कौन हैं। तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि मुवज्जरीन उन लोगों को कहते हैं जो माल को हराम और गलत जगह वो खर्च करते हैं, ना अल्लाह की इताअत में और ना हक में। यानी मुवज्जरीन वो हैं, शैतान के भाई वो हैं जो माल को गलत जगह खर्च करते हैं, ना तो वो अल्लाह ताला की इताअत में उसको दे रहे हैं, और ना लोगों के जो उसके ऊपर हक हैं उनको अदा करने में वो दे रहे हैं। हक किसका है, मुसाफिर का, रिश्तेदारों का, मिस्कीन का, वालिदैन का, भाई बहन का। ना तो इन हकों में वो खर्च कर रहा है, बीवी का, औलाद का, ना ही वो अल्लाह ताला की इताअत में, कि नेकी के कामों में, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में। ठीक है, वो हराम और गलत कामों में उसको खर्च करता है, तो ये है शैतान के भाई। तो ये बड़े बड़े जो फंक्शन करते हैं और धूमधाम से वो अपने सेरेमनी करते हैं, अपनी किसी भी चीज का कोई फंक्शन है, तो वो कौन है, आप उनको डायरेक्ट बोल दीजिए आप शैतान के भाई हैं, और हम शैतान के भाई बनना नहीं चाहते, इसलिए हम आपके फंक्शन में नहीं आएंगे। हजारों रुपए के बम फोड़ देते हैं एक एक फंक्शन में, हजारों रुपए के।
क्या फायदा उससे? एनवायरनमेंट का उससे नुकसान, पड़ोसियों को उससे तकलीफ, आग लगने का उससे खतरा। कोई एक बेनिफिट तो बताओ। कोई बेनिफिट नहीं है। ऊपर वो लाइट के तार हैं, पता नहीं कि चिंगारी कहाँ से निकल कर कहाँ चली जाए। हम देखते नहीं है कि दिवाली पे पटाखों से कितना नुकसान होता है, फिर भी नहीं मानते। पोल्यूशन अलग, लेकिन कर मतलब कि कर तो हराम कामों में खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको शैतान के भाई कहा। ये शैतान के भाई हैं। भाई शादी है, बारात चल रही है और नोटों की गड्डी ऐसे करके लुटा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो? वहां गरीब कोई है लूटने के लिए? वहां मिस्कीन कोई है? आप ही के रिश्तेदार हैं, वही हाथ साफ कर जाते हैं। वहां मिस्कीन कोई आए हैं, आपके पास नोट इतना एक्स्ट्रा है, आप ढूंढिए मिस्कीन कहाँ है, आप ढूंढिए बेवा औरतें कहाँ है। बेवा औरतें आपकी बारात के पीछे पीछे कोई चलेंगी नोट लूट मतलब कि लूटने के लिए। वहां गड्डी अपना रुतबा दिखाने के लिए गड्डियां आप उड़ा रहे हैं कि कार की छत हटा के वहां खड़े हो गए लड़के, और जैसी लड़की वाले का घर आएगा, जैसी मैरिज हॉल आएगा, हम गड्डी फेंकेंगे, हम बम मतलब कि उड़ाएंगे। तो कौन है ये शैतान के भाई हैं। ये शैतान के भाई हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला यही कहता है, इन्हीं को तो शैतान के भाई कहा है। सबसे बदतरीन निकाह क्या है? जिसमें ज्यादा खर्च हो। सबसे बेहतरीन निकाह क्या है? जिसमें सबसे कम खर्च हो। जी हम निकाह में गए थे। जी हम निकाह में जा सकते हैं जहां सब कुछ हो रहा हो? ये क्वेश्चन आते हैं। वो शैतान के भाई हैं, आप बहन बनने चले जाएं, रिश्तेदारी जोड़ने चले जाएं आप उनसे। यही तो बात है, शैतान के भाई हैं। और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुवज्जिरीन के बारे में, ये लोग शैतान के भाई इसलिए हैं कि दोनों नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करते हैं। यानी इमाम कुर्तुबी ने इसको और आसान करके बता दिया कि शैतान के भाई अल्लाह ताला ने इनको इसलिए कहा गया है, जो फजूल खर्च करते हैं, जो मुवज्जिरीन अल्लाह ताला ने इनको कहा है वो इसलिए क्योंकि ये वो नाशुक्री करते हैं। दोनों ही नाशुक्री करते हैं, शैतान भी नाशुक्री मतलब उसने की, और ये फजूल खर्च लोग भी नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको पैसा दिया, उसको सही जगह ना लगाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि नाशुक्री करते हैं। और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत भी करते हैं, एंटी भी है अल्लाह के हुक्म के। अल्लाह कह रहा है मिस्कीनों को दो, रिश्तेदारों को दो, मुसाफिर को दो, अल्लाह की राह में दो। वो मुखालिफत करते हैं, नहीं पटाखों में देंगे, उड़ाएंगे, फंक्शन में लगाएंगे, अय्याशी में लगाएंगे, हराम काम में लगाएंगे, 1 लाख का डीजे मंगाएंगे, 4 लड़कियां बुलाएंगे, मतलब उनको उनको नचाएंगे। तो क्या है ये अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत तो कर रहे हैं आप। बड़ा खुश होते हैं, आज हमारे मोहल्ले में सपना चौधरी आई। भाई क्या है सपना चौधरी? आज हमारे मोहल्ले में वो फलां वो आई। भाई क्या है नाचने वालियां? इनकी क्या हैसियत है? बड़े फख्र से बताते हैं। तो एक तो अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए ये शैतान के भाई हैं। शैतान ने अपने रब के हुक्म की मुखालिफत की, आदम को सजदा नहीं किया, मुखालिफत हुई अल्लाह के, वो अल्लाह ताला के हुक्म की, ऐसे ये कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान का भाई कहा है। सिर्फ ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने ऐसी लफ्जी तौर पे कह दिया, बड़ी हिकमत है इसके पीछे। अल्लाह ताला कोई भी बात एवं ही नहीं कह देता कि हाँ की कह दे। शैतान नाशुक्र था, ये भी नाशुक्री कर रहा है। शैतान ने मुखालिफत की थी, ये भी मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए शैतान के भाई हैं। और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है शैतान। और हमें ये देखना चाहिए, क्या हम भी तो शैतान के भाई नहीं है? हम अपने अपने पैसे को देखें तो हम भी कहीं ना कहीं भाई निकल जाएंगे उसके। जिसका शैतान भाई हो, क्या वो जन्नत में जा सकता है? वो तो फिर अपने भाई के साथ ही रहेगा ना हमेशा, कि भाई दुनिया में मैं तेरे साथ था, मैंने भाई बोला था तुझे, जहन्नुम में भी एक साथ जलना है। तो यही हमें करना है, फजूल खर्ची से हमें बचना है, जायज कामों में जरूरत से ज्यादा नहीं लगाना है। मेकअप पे औरतें इतना मेकअप पे मतलब पैसा लगा देती हैं, ब्यूटी पार्लर वाले अमीर हो चुके हैं। 5-5 हजार का मेकअप। भाई शोहर के लिए मेकअप आया है, शोहर को मिल रही हो आप, बाल बिखरे हुए,
आपके कुछ भी मेकअप नहीं है, शोहर को मिल रही हो इस हाल में, फंक्शन में नॉन महरम को दिखाने के लिए 5,000 रुपए का मेकअप करा के आप जा रहे हो। क्या कर रहे हो? ये फजूल खर्ची नहीं है? मेकअप आया है, बिल्कुल करे, शोहर है। अगर औरत है, हाँ, मेकअप उसको करना है तो शोहर के लिए करे, बिल्कुल करे शोहर के लिए। जो शोहर के लिए नाइट में करेगी, ईशा के बाद, ईशा की नमाज पढ़ के मेकअप करके बैठे, बिल्कुल फजर में उसको धोए। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। शोहर के उठने से पहले पहले खुद को मतलब कि बन सवर कर ठीक हो जाए। इसमें क्या मसला है? वो कोई मसला नहीं है। ये काम नहीं होते औरतों से। औरतों से काम होते हैं, आज उसकी फलाना की शादी है, आज उसकी शादी है, आज उसके घर में ये है, आज मैं वहां जाऊंगी, आज आईब्रो भी बनेगी जो कि हराम है, वो भी बनेगी आज, बाल भी स्ट्रेट होंगे, इसमें क्रेटिनाइन होगी, पता नहीं क्या क्या, 5-5 हजार, 6-6 हजार मेकअप पे जा रहा है। एक वुजू का मेकअप नहीं है वो, एक वुजू का। और वो नमाजें आती हैं, वो जाया होती हैं, वो वेस्ट होती हैं, वो छोड़ दी जाती हैं। क्यों? जिस बंदे ने सुबह 12 बजे अगर मेकअप करवा लिया 5 हजार का, क्या आपको लगता है वो जोर में धो देगा? क्या लगता है आपको असर में धो देगा? नहीं धोते रात भर। तो जो नमाजी औरतें होती हैं ना, उनकी नमाजें भी मतलब छूट जाती हैं। फर्ज चीज, जिस चीज की अल्लाह ताला ने जंग में छोड़ने की इजाजत नहीं दी है, उसको फंक्शन में हम छोड़ देते हैं। तो ये शैतान के भाई हैं, ये शैतान की बहनें हैं, हमारे आसपास ही हैं, नजर नहीं आती। क्यों है ये शैतान की बहनें और भाई? क्योंकि शैतान अपने रब का नाशुक्रा है, ये भी नाशुक्री कर रहा है। शैतान ने अपने रब के हुक्म की मुखालिफत करी, ये भी मुखालिफत कर रहे हैं। जहां अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया वहां नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे आयत में बताया है, और अगर उनसे यानी जरूरतमंद नातेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, यानी अगर तुम्हें उनसे बचना हो, तो बिना बात के नहीं, उसकी उसका रीजन भी दिया अल्लाह ताला ने, इस वजह से कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो, तलाश कर रहे हो। यानी तुम्हें इस वजह से कतराना हो, अगर तुम्हारे पास कोई आया है, कोई मुसाफिर आया है, कोई रिश्तेदार आया है, उसको जरूरत है, कोई मिस्कीन है उसको जरूरत है, लेकिन अभी खुद तुम उस रहमत को तलाश कर रहे हो, उस अल्लाह ताला के फजल को तलाश कर रहे हो, उस उम्मीद, अभी आपके पास ही खुद पैसा नहीं है, तो आपको उनको झिड़कना नहीं है कि जाओ जी जाओ, हमारे पास ना पैसे, तुम्हारा तो काम ही है मांगने का। नहीं, उन्हें नर्म जवाब दो कि अभी देखें, मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं से इंतजाम हो जाए, आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और उनके जो दुख में है वो शरीक होना है आपको, उन्हें उन्हें वो नर्म जवाब देना है। उन्हें आपसे मांग कर ऐसा ना लगे कि इस बंदे के सामने तो हाथ ही गलत फैलाया, इस बंदे से तो मांगा ही गलत। उसको लगे कि हाँ, बंदा जेन्युइन है, ये कोशिश कर रहा है। आप कोशिश करें कहीं और से उसका इंतजाम हो जाए, आप वो किसी और तक उनकी बात पहुंचा दें कि भाई मेरे जानने वाले हैं एक, और उनके ऐसा ऐसा सीन है, अर्जेंट जरूरत है, मेरे पास तो नहीं है, आप के पास है तो आप करा दीजिए। तो हर किसी के पास, हर किसी के कांटेक्ट में ऐसे नंबर होते हैं, हर किसी के फ्रेंड सर्कल में, हर किसी के रिश्तेदारों में ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो उनके थ्रू उनकी मदद की जा सकती है। अगर तुम्हें कतराना हो तो अल्लाह ताला ने कहा इस वजह से कि क्योंकि अभी तुम खुद अल्लाह ताला की रहमत, अ, रहमत को, वो जिसके तुम उम्मीदवार हो, खुद तलाश कर रहे हो अल्लाह ताला की रहमत को, अभी तुम खुद अल्लाह ताला का फजल तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब देना है, आपको झिड़कना नहीं है, मना नहीं करना है। किसी ने हाथ फैलाया है तो अपनी इज्जत नफ्स उसने आपके हाथ पे रख दी, अपने हाथ पे रख दी, तो उनको आपको नर्म जवाब देना है। तो ये 3 आर्टिकल इस्लामिक हुकूमत में होने चाहिए, जिसमें जो राइट है वो प्रिजर्व हों। पहला किसका हो? रिश्तेदारों का, दूसरा मोहताजों का यानी जो मिस्कीन है, फिर तीसरा मुसाफिर का। और इस्लामिक रियासत में, रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो रियाया है उनको फजूल खर्ची की तरफ जाने ना दे, यानी हराम कामों पर पाबंदी लगाए बाकायदा, ताकि उनपे कोई लोग पैसा ही खर्च ना करे। गैम्बलिंग, जुआ हरामी तो है, र, इंडिया में लीगल हो चुका है,
ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाइए, रमी सर्कल पे पैसा लगाइए, लूडो किंग में 1 रुपए से पैसा लगाइए। ये लालच दे रहे हैं आपको। ये हरामी है सब। तो हुकूमत इन तीनों चीज़ों के जो 3 अल्लाह ताला ने वो राइट बताए, इनको भी प्रिज़र्व करेगी और साथ-साथ फ़ुज़ूल खर्ची पे भी पाबंदी लगाएगी, जिसके लिए हराम कामों पे हुकूमत अपने अंदर नहीं होने देगी और जायज़ कामों में ज़रूरत से ज़्यादा इंसान पैसा खर्च ना करे। ये भी हुकूमत में ये इंसान के अखलाक में होनी चाहिए कि मुझे किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च करना है, क्योंकि हुकूमत इसमें ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकती। लेकिन हुकूमत लेवल पे जो काम हो सकता है वो ये है कि नाजायज़ कामों की, हराम कामों की पाबंदी वहाँ पर आयद कर दी जाए। और नेकी के कामों में अगर कोई पैसा लगा रहा है तो देखें हुकूमत का कोई रोल नहीं इस फ़ुज़ूल खर्ची में। इंसान के अब हुकूमत को तो नहीं पता है कि ये सदका कर रहा है, इसकी नीयत क्या है? तो वो तो आपको खुद को भी देखना है। यानी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, साथ-साथ इंसान की भी ज़िम्मेदारी है। तो ये इस्लामिक मैनिफेस्टो में 3 जो यहाँ पे आर्टिकल बताए, उनके बाद एक फ़ुज़ूल खर्ची का भी उसमें आर्टिकल बताया है और इसको हुकूमती लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाएँगे और जो वहाँ की अवाम है, उनकी भी अखलाकी ज़िम्मेदारी होगी कि इनके जो हुकूक हैं, वो अपने अपने रिश्तेदारों के, मिस्कीनों के, आस-पास के, मुसाफिरों के वो अदा करने वाले बने और फ़ुज़ूल खर्ची वो अपनी ज़िंदगी में वो कभी ना करें। तो यही चीज़ थी जो इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आयतों की असल हिदायत को हमारे दिलों में रासिख़ कर दे, इस पे अमल करने वाला हमें बना दे और इसके बेहतरीन पहलू पर हम इसके अमल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।